Good morning, everyone. Today we are going to study the geography third chapter of class 7, that is changing face of the earth. The lithosphere is separated into various rigid, irregularly shaped plates known as the lithospheric plate, which move around very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner, due to which earth changes constantly on the surface as well as from the inside. The change occurring in the earth are divided on the basis of the forces which cause them: endogenic and exogenic forces. Endogenic forces. Endo means inside, genic means origin. Forces that occur beneath the surface of the earth are called endogenic forces and are of two types: sudden forces. Earthquake. An earthquake is the result of a sudden release of energy by the movement of lithospheric plate. The plate in the crust where the movement starts is called the focus, and the place on the surface above the focus is epicenter. The vibration travels from the epicenter as wave. There are three types of wave: earthquake wave, P wave, longitudinal wave, S wave, transverse wave, L wave, surface wave. The strength of the earthquake decreases as we move away from the center, and the greatest damage is usually in area near to the epicenter. An earthquake is measured with a machine called seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 7.0 is classified as a major earthquake. Volcano. A conical mountain or hill having a vent through which molten material such as lava, rock fragment, hot vapor and gases erupt suddenly is called a volcano. Landslide. A landslide is movement of mass of rock, debris or the earth down the slope of the mountain or cliff. It can happen because of endogenic or exogenic forces. Diastrophic forces. These are forces behind slow process that create the damaged features of the earth crust, including continent, mountain, ocean, beds, fold and fault. Exogenic forces. Exo means outside, genic means origin. The forces the forces the forces like wind, water and ice that work on the surface of the earth and impact of celestial objects, comets, material, etc. on earth are called exogenic forces. The landscape is continuously worn away by weathering and erosion process. Weathering is the natural wearing down of mountain and rock on the earth's surface by wind, water and other elements in the environment. Erosion is the process of transporting weather material with the help of various agents like wind, glacier, water, etc. and their deposition. The process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. Work of work of river. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley, it forms a waterfall. The highest waterfall is Angel Fall of Venezuela in South America. As a river flows, it erodes the land it flows on, carrying away a lot of material. As the river enters the plain, it forms meander, oxbow lake, flat fertile floodplain, and levees. The spread of the flowing
Water decreases as the river approaches the sea. The river begins to break up into a number of streams called distributaries. The collection of sediment form all the mouth form a delta. Work of sea waves. The erosion and deposition of the sea wave gives rise to coastal landform, sea cave, sea arcades, stack and sea cliff. Beaches are formed by the sediment deposited along the shore by the sea wave. Work of ice. Glacier can erode rock and land. They move slowly across the land, taking along with them rocks, sand, debris, and soil. When deposited, they form glacial moraines. When the ice melts, the deep hollows carved out by glacier filled up with water and become beautiful lake. Work of wind. Wind carry dust, sand, volcanic ashes, etc. from one place to another. In the desert, wind is an active agent of erosion and deposition. Desert wind erode the lower section of the rock more than the upper part. These rocks, having narrow base and wide top, are commonly called mushroom rock since their shape looks like mushroom. Sand dunes are small hills-like structures which are formed when the wind stops blowing and the sand falls and get deposited. The wind can carry fine grains and sand over very long distance. Loess is fine grained material that has been transported and deposited in large area by the wind. Large deposits of loess are found in China. ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर में चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है और इसका शेप जो है वो अनियंत्रित है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई एक समान शेप इसका नहीं मिलता है और इसको बनने में कई सारे समय कई प्रक्रियाओं के द्वारा ही ये बन सका है। इसका मूवमेंट का मुख्य कारण जो है हमारे पृथ्वी के अंदर में जो मोल्टेड पिघला हुआ जो मैग्मा है उसके कारण जो है ये मूव करती रहती है और इसमें तोड़ फोड़ की क्रियाएं होती रहती हैं और इसी के चलते जो है हमारे यहाँ पे कई परिवर्तन होते हैं। न केवल आंतरिक भाग से परिवर्तन होता है बल्कि ऊपर के भाग से भी पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं प्रकार के परिवर्तन जो कि दो बलों के कारण हो रहे हैं इसको एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वे सभी फोर्सेस जो कि सरफेस के अंदर से क्रिया करके बल लगा के या फोर्स लगा के उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सडन फोर्सेस और स्लो। अर्थक्वेक जो है ये पृथ्वी पे सडन एक एनर्जी का रिलीज होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है क्रस्ट पे और जिसके चलते ये जो कंपन पैदा होता है। इससे कई तरह की तरंगें निकलती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें पी, एस और एल। इस तरंगों के जितने नज़दीक होंगे और जहाँ से ये टकराव से वाइब्रेशन निकलता है उस जगह पे सेंटर कहते हैं और इसको जहाँ पे सबसे सीधे सतह के ऊपर में नियरेस्ट जो ऊपर में दिखाई पड़ता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। इसके जितने नज़दीक जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ताकतवर होता है और जितना इससे दूर जाएंगे उतना ही ये कमज़ोर पड़ जाता है। अर्थक्वेक को मेजर करने की मशीन बनाया गया है, उस मशीन का नाम सिस्मोग्राफ है। इसके मैग्नीट्यूड को यानी तीव्रता को हम रिक्टर स्केल के ऊपर में मापते हैं। अभी तक का जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो अर्थक्वेक आया है वो 7.0 रिक्टर स्केल के अनुसार। वोल्केनो एक कोनीय पहाड़ या चोटी जो बनती है वो हमारे पृथ्वी के वेंट के खुलने के कारण जिसमें से लावा या कुछ चट्टानों के टुकड़े, गैस और वेपर निकलते हैं। ये अचानक से निकलने वाले तो इसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं। लैंडस्लाइड
अचानक से जब कभी भी ऊंचाई की तरफ से पत्थरों का पूरा जत्था या झुंड या पूरा का पूरा मिट्टी ही ऊपर की तरफ से नीचे की ओर खिसक के चली आए, इसको भी हम लोग लैंडस्लाइड में रखते हैं। यह सडन एक प्रक्रिया जिसके चलते जो है किसी भी स्थान की शेप बदल सकता है। डिस्ट्रोफिक फोर्सेस, ये वे सभी बल हैं जो कि बहुत ही धीमे कार्य करते हैं और ये हमेशा ही कंटिन्यूअसली काम करते हैं, जिसके चलते जो है पहाड़ कभी कभी फोल्ड और फॉल्ट माउंटेन भी बनते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये वे कारक हैं जो बाहर की तरफ से पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, जैसे कि हवा, नदी। ये सभी जो है कंटिन्यूसली पृथ्वी की सतह पर लगातार अपनी क्रियाओं के द्वारा उसके अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करके अलग अलग स्थलाकृतियों को या लैंडफॉर्म को बनाते हैं। जैसे कि नदी का कार्य, नदी जो है अपने साथ में कई तरह के टूटे फूटे पत्थरों को इरोड करके लेकर अपने रास्ते में जाती है। साथ ही साथ ये अपने रास्ते में दूसरे जगहों के तोड़ फोड़ करके लेके जाती है। जब ये प्लेन एरिया में प्रवेश करती है, उससे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में ये ऊंचाई से नीचे की तरफ में गिरती है, तो वहाँ पे यह एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है। विश्व का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो एंजल वाटरफॉल है, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में पाया जाता है। आगे जब ये नदी जो है अपने साथ मटेरियल को लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट प्लेन होने के चलते इसको गति नहीं मिलता, तो वो वहाँ पे इन मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है और आगे की ओर निकल जाती है। जैसे ही आगे की ओर जाती है, वहाँ पर फ्लड प्लेन या फर्टाइल प्लेन का निर्माण होता है और ऑक्सबो लेक का भी निर्माण होता है। फिर आगे जाकर जब ये समुद्र के किनारे पहुँचती है, तब इसमें क्षमता अब नहीं रहती है कि ये उन सारे मटेरियल को, सेडिमेंट्स को अपने साथ में समुद्र के अंदर ले जा पाए। इसलिए बहुत ही अलग अलग शाखाओं में एक ही नदी बढ़ जाया करती है और सारे मटेरियल को अपने मुहाने पे, नदी मुहाने पे वो क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। इससे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। वर्क ऑफ सी वेव, समुद्र तटीय क्षेत्रों के किनारे समुद्री जो लहरें होती हैं वो कभी ऊंचाई से आती हैं और तट के ऊपर में प्रहार करती हैं। उससे चट्टानें जो तट के ऊपर में है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाया कि ये टूट जाती हैं। वहाँ पे कभी कभी गुफा बन जाता है, कभी कभी क्लिफ भी बन जाता है। इसके चलते जो है हमें तट के किनारे, मतलब कि जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर जो है वो भी अपने साथ में पत्थर और ज़मीन के कुछ हिस्से को लेकर जमी हुई रहती हैं और धीरे धीरे ये अपने स्थान से घिसकते रहती हैं और निचले सतह पे ये कुछ न कुछ निशान छोड़ती हुई जाती हैं। जहाँ पे जाकर ये डिपॉजिट हो जाती हैं, उस जगह पे डिपॉजिट हो जाने के बाद वहाँ पे मोरेन्स का फॉर्मेशन होता है। और यही जब मोरेन्स जब कभी भी दूसरी जगह पे जहाँ पे इन्होंने कटछट किया था ग्लेशियर, वहाँ पर गड्ढे हो जाने के कारण वहाँ पर तो बर्फ़ से पानी, जब कभी भी ये बर्फ़ का पानी ठंडा हो गर्म होकर पानी में चेंज हो जाता है बर्फ़, तब वहाँ पे बहुत ही सुंदर झील का निर्माण हो जाता है। वर्क ऑफ विंड, विंड जो है अपने साथ में धूल कण और कभी कभी ज्वालामुखी राख भी अपने साथ में लेके उड़ा करती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख देती है। ये खास करके रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे बड़ा एजेंट होता है इरोजन का। ये इरोजन भी करती है और डिपोजिशन भी कम करती है। डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है पत्थरों का, उसके निचले स्तर पे होता है, ऊपरी स्तर पे पत्थरों का कम होता है और निचले स्तर पे इतना वो संकीर्ण स्ट्रक्चर हो जाता है ऊपरी स्तर के मुकाबले कि वो छत्रक नुमा दिखाई पड़ता है, एक छाते के ठीक बड़ा। बाद में इसको मशरूम के जैसा इसकी आकृति दिखती है, इसलिए इसको मशरूम रॉक के नाम से भी कहते हैं। एक उल्टी नौका या फिर हम कह सकें एक छोटा सा पहाड़ के स्ट्रक्चर के नुमा डेजर्ट में कभी कभी बालू का एक टीला दिखता है, उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये हवा के डिपोजिशनल वर्क के थ्रू बनता है। वहीं पे कई बार ये हवाएं जो हैं काफ़ी लंबी दूरी तक ट्रेवल करती है अपने कणों के साथ में और बहुत ही महीन कण ले जाकर काफ़ी लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है और वहाँ पर जमा कर देती है। इसको लोएस कहते हैं। सबसे बड़ा लोएस का मैदान जो है चाइना में पाया जाता है।